We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. All right, good afternoon, everybody. So let's catch up with the yesterday's discussion. It was on frequency control, right? Can you hear me, Prasad? સંભળાય છે. Okay, so once again, our discussion ચાલુ કરીએ તો હંમેશા torque equation થી ચાલુ કરવું જોઈએ. We can see over here that torque depends on again synchronous speed, stator voltage and rotor resistance. So induction motor speed control methods are also based on these three, which is stator voltage control method, rotor resistance control method, and we are discussing frequency control at present. So we have already discussed the first two methods. This is stator voltage control method. Different voltages માટે તમને જે characteristics મળે induction motor ની એ આવી રીતની મળે છે અને we can see that we do not get much variation in speed. So this method is used only and only for fan type of applications. જે રીતે આપણે સીલિંગ ફેનમાં પણ આ જ એપ્લિકેશન થી સ્પીડ કંટ્રોલ કરીએ છીએ. 3 phase induction motor હોય તો આવી રીતે આપણે એની સ્પીડ કંટ્રોલ કરી શકીએ. Now rotor resistance control we have discussed in last week. You can see that motor torque is inversely proportional to rotor resistance, but starting torque is directly proportional to rotor resistance. And also maximum torque is something which is not affected by the rotor resistance, right? So આ characteristics આપણે જોઈ ગયા હતા કે આ મોટરની જે basic characteristics suppose આ રીતની હોય તો આટલું maximum torque છે આ starting torque છે અને જો rotor resistance આપણે increase કરીએ તો you can see the maximum torque remains same but the slope of the curve increases and starting torque also increases. Likewise rotor resistance method આપણને this is what we had already discussed. The rotor resistance method maximum torque is not affected, starting torque increases and running torque decreases. How to implement rotor resistance method? तो रोटर सर्किट में रेजिस्टेंस डालना है. रेजिस्टेंस डालने के लिए मॉडर्न मेथड ऐसी है कि हम रेक्टिफायर करके एक रेजिस्टेंस डालते हैं और रेजिस्टेंस के पैरेलल में एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच यूज करते हैं. उसका ड्यूटी साइकिल मतलब ऑन ऑफ कंट्रोल करके हम रेजिस्टेंस को वेरी करते हैं. दैट इज हाउ वी अचीव रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल. So rotor resistance control is possible only for slip ring type of induction motor. It can also work as a rotor resistance starter. Same way આપણે પણ જોયું હતું કે જે stator voltage control method છે that also is a starting method. Then આપણે soft starter કહીએ છીએ, right? We can only increase the value of rotor resistance. Rotor resistance decrease ના કરી શકીએ આપણે. And with increase in RF, starting torque increases, which is good. High inertia applications હોય જે high starting torque જોઈએ ત્યાં આપણે આ રીતની motor and this method we can use. And maximum torque is not affected, that is good thing, but the slip at which maximum torque occurs increases. એટલે કે slope decrease થાય અને with increase in RF running torque decreases, right? So later on we were discussing about the frequency control method. So what we had discussed in this, that frequency is changing synchronous speed and rotor always follows the synchronous speed. So motor ni speed પણ change કરી શકાય if we can change the frequency.
frequency alone cannot be changed. આપણે yesterday discuss કર્યું હતું, because the voltage is constant. If we do not change voltage, voltage is constant, and induced EMF, which is 4.44 into frequency into number of turns into flux, is also a constant item. So if I change the frequency, the flux automatically gets affected. You can see the flux is inversely proportional to frequency. So if we increase the frequency, flux decreases, which is not allowed, and if we decrease frequency, flux is increased, which is not allowed. So our frequency alone cannot be changed. Yesterday we had discussed that what is the solution. So let us change voltage also with respect to frequency and keep V by F ratio constant. So આપણે mathematically જોયું હતું કે if we keep V by F constant, then V by F is proportional to flux. Flux is also constant. तो वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी दोनों को अगर एक साथ चेंज किया जाए मिनिमम से लेके रेटेड तक, तो हम पूरा स्पीड कंट्रोल अचीव कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग मोटर टॉर्क कैपेबिलिटी, विदाउट गोइंग इनटू द सैचुरेशन. तो मोटर को डिस्टर्ब किए बिना हम लोग इस मेथड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं V by F कंट्रोल. इट इज अ फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड, बट इसमें साथ में वोल्टेज भी चेंज किया जाता है. कैसे? इस तरह, so that ratio of voltage and frequency is always constant. हमने देखा था कि किस तरह से maximum torque is also a function of V by F. So अगर V by F constant है तो आप देख सकते हो maximum torque is also constant. इसका मतलब कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे मुझे जो मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगी वो कुछ ऐसे मिलेगी, पैरेलल कैरेक्टरिस्टिक्स. इस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें डीसी मोटर्स में, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर्स में मिलती थी जब हम आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल करते थे, एंड दैट वाज द बेस्ट मेथड. सिमिलरली इंडक्शन मोटर्स आर आल्सो सिमिलर टू डीसी शंट या सेपरेटली एक्साइटेड मोटर्स, जिसमें अगर हम V by F मेथड यूज करें तो जीरो से आप देख लो ऑलमोस्ट मिनिमम से आप रेटेड स्पीड कोई भी स्पीड पे मोटर को चला सकते हो. उस वक्त उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है विद मिनिमम स्लोप. तो ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये हमें क्या देती है? अच्छा स्पीड रेगुलेशन, मतलब लोड चाहे यहाँ से यहाँ तक चेंज हो जाए, स्पीड में ज्यादा वेरिएशन नहीं होता, जिस स्पीड पे चाहो हम चला सकते हैं. ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब वी हैव चेंज सिंक्रोनस स्पीड इटसेल्फ. ये रेटेड सिंक्रोनस स्पीड है विद 50 हर्ट्ज. सपोज ये हमारा 20 हर्ट्ज है, तो उस वक्त सिंक्रोनस स्पीड खुद चेंज हो गई. तो इस वक्त मेरी मोटर की जब रेटेड ऑपरेशन चल रहा है तो स्लिप विल बी 2 to 5%. तो उस स्लिप पे मोटर का रेटेड करंट रहेगा वो मिनिमम रहेगा, और करंट मिनिमम रहेगा तो लॉसेस मिनिमम रहेंगे, एंड एवरीथिंग विल बी फाइन. सो दिस इज हाउ वी हैव द ग्रुप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स विद फ्रीक्वेंसी कंट्रोल. कैसे फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करते हैं ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, कल देखा था. दैट हम जीरो से लेके जब मोटर को स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली थोड़ा ज्यादा वोल्टेज देते हैं, जिसको बूस्ट वोल्टेज बोलते हैं. देन ग्रेजुअली जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है वोल्टेज आल्सो इंक्रीजेस, एंड दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. एंड ये स्ट्रेट लाइन क्या है? ऐसी स्ट्रेट लाइन है जिसका V by F रेशियो कांस्टेंट है. कहां तक? अप टू रेटेड वोल्टेज. दिस इज रेटेड वोल्टेज एंड दिस इज रेटेड फ्रीक्वेंसी. उससे ज्यादा अगर हाई स्पीड पे मोटर को चलाना है तो स्पीड बढ़ा सकते हैं, बट वोल्टेज बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि इंसुलेशन की लिमिटेशन है, मोटर इंसुलेशन डैमेज हो जाएगा. तो यू कैन रन एट अ मोटर एट हायर स्पीड बट एट सेम वोल्टेज. और ये जो यहाँ पे जो ऑपरेशन होता है इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे. दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड कांस्टेंट पावर ऑपरेशन. बट एनीवे, ये रीजन में मोटर ऑपरेट होती है जब V by F रेशियो हमारा कांस्टेंट रहता है अप टू रेटेड स्पीड. सो जीरो से लेके रेटेड स्पीड या अबव रेटेड स्पीड इस मेथड से हम लोग चला सकते हैं. हमने इसके फीचर्स देखे थे. दिस you can given torque is obtained at lower current. Speed control and braking operations are available from zero speed to above base speed. During transients the operation can be carried out at maximum torque. ये कैसे, ये बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे जब इसका ट्रांसिएंट एनालिसिस करेंगे. मोटर का करंट मिनिमम है तो लॉसेस मिनिमम है तो एफिशिएंसी हाई है. एंड व्हेन मोटर इज हैविंग स्लिप ऑफ 2 to 5%, पावर फैक्टर इज गुड. इंडक्शन मोटर के बारे में आपको याद रखना है कि इसका पावर फैक्टर पुअर होता है
जब उसकी स्लिप ज्यादा होती है, मतलब कि स्टार्टिंग के पीरियड में। अगर स्लिप जितनी कम है उस वक्त पावर फैक्टर आपका उतना अच्छा रहता है। इट इज हैविंग गुड स्पीड रेगुलेशन, जो हमने स्लोप देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स का वो बहुत ही मिनिमम है इसलिए। एंड स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के साथ इसमें कर सकते हैं स्पीड कंट्रोल, दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मेथड, राइट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस मेथड को अचीव कैसे करते हैं, हाउ टू इम्प्लीमेंट द V/F कंट्रोल मेथड। तो आप देख सकते हो इम्प्लीमेंट करने के लिए the problem is that we have over here from supply electricity board fixed voltage and fixed frequency supply, कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ना तो चेंज कर सकते हैं ना तो वोल्टेज चेंज कर सकते हैं। हमें चाहिए वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई, तो उसके लिए ये एडिशनल अरेंजमेंट हमें करनी पड़ती है, जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव या VFD। हम क्या करते हैं, पहले इसको रेक्टिफाई करते हैं सो दैट यू हैव अ डीसी, और फिर डीसी को इन्वर्ट करते हैं। अब डीसी को इन्वर्ट करते वक्त हम इस तरह से उसको कंट्रोल सिग्नल्स देते हैं, फायरिंग सिग्नल्स देते हैं, so that it gives us variable voltage and variable frequency. There are different methods for doing it, which we shall see slightly later. फिर से frequency control या V/F control के लिए हमें ये additional arrangement इसमें डालनी पड़ेगी। This arrangement is called VFD. This is called VFD, right? So this VFD ultimately है क्या, एक रेक्टिफायर है, एक इन्वर्टर है और बीच में डीसी लिंक है। तो ये जो वोल्टेज वेरिएशंस है उसको ये कैपेसिटर नलिफाई कर लेता है, इसको डीसी लिंक बोलते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में 1 घंटे और बात हो सकती है, बट अभी हम सिंपल बनाएंगे, इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, राइट। तो कैसे इसको हम लोग को सिग्नल देने हैं, तो जिस स्पीड पे मोटर को चलाना है अकॉर्डिंगली वी हैव अ V/F कंट्रोल मॉड्यूल ओवर हियर। वो ग्रेजुअली इस तरह से फ्रीक्वेंसी या वोल्टेज डिसाइड करेगा सो दैट V/F रेशियो इज कांस्टेंट। उस रेफरेंस फ्रीक्वेंसी और उस रेफरेंस वोल्टेज के हिसाब से इस इन्वर्टर को फायर किया जाएगा। ये जो काम करता है, ये काम हमारा कंट्रोलर करता है, राइट। सो इसके बारे में इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बाद में डिस्कस डिटेल में करेंगे। अभी दिस इज द ब्लॉक डायग्राम, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन हैव अ स्पीड कंट्रोल implemented, V/F control implemented. Now, what are the types of inverter which we can use for V/F control method? So we can have a voltage source inverter. In that we can have a square wave inverter or step inverter, the oldest method, or we can have a PWM inverter. We can also use current source inverter, जिसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, right? So in general voltage source inverter से अगर हमें इसको करना है तो कैसे कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि हमारे पास जो सप्लाई है, एज्यूम करते हैं कि डीसी सप्लाई सपोज यहाँ पे अवेलेबल है थ्रू रेक्टिफायर, एंड यहाँ पे मुझे वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई अचीव करना है। तो दिस इज रेफरेंस सिग्नल, ये डिले देते हैं, सो ग्रेजुअली स्पीड इंक्रीज होती है। फ्रीक्वेंसी हमको सपोज मोटर को हमें 25 हर्ट्ज मतलब आधी स्पीड पे चलाना है, तो 0 से 25 सीधा तो नहीं होगा, धीरे धीरे मोटर चेंज होगी। सो दिस इज डिले। सो 0 से 5 हर्ट्ज के स्टेप्स में फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। ये फ्लक्स कंट्रोल ब्लॉक V/F रेशियो कांस्टेंट रहे इस तरह से, फॉर रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी इट विल गिव रिक्वायर्ड वोल्टेज कमांड, एंड ये इन्वर्टर इस तरह से उसको फायर किया जाता है दैट रिक्वायर्ड वोल्टेज एंड रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी आर अवेलेबल एट द आउटपुट। कौन करता है, ये करता है इन्वर्टर की फायरिंग सिग्नल्स या फायरिंग स्ट्रेटेजी। अगेन अगर हमारे पास स्टेप इन्वर्टर है तो आप देख सकते हो कि स्टेप इन्वर्टर इस तरह से आउटपुट देता है। स्टेप इन्वर्टर इज नॉट अ प्योर साइन वेव बट इट इज एन अल्टरनेटिंग। सो इससे मोटर बिल्कुल चलेगी। अगर हमारे पास 3 फेज स्क्वायर वेव इन्वर्टर है तो उससे मोटर बिल्कुल चलेगी, बट इसमें हम लोग वोल्टेज का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकते। सो व्हाट इज new over here, you can see over here the control rectifier is required, क्योंकि डीसी वोल्टेज चेंज करेंगे तो जाके एसी वोल्टेज चेंज होगा। तो वोल्टेज मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी चेंज बाय द स्क्वायर वेव और स्टेप इन्वर्टर। तो वी नीड टू हैव सम एक्स्ट्रा मींस, कुछ और तरीके से उसका वोल्टेज चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे मेथड यूज किया है कंट्रोल रेक्टिफायर का, राइट। सेम वे जैसे हमने स्पीड रेफरेंस दिया तो कंट्रोलर 2 कंट्रोल जनरेट करेगा सेपरेट। V/F रेशियो कांस्टेंट रहे इस तरीके से
voltage control signals यहाँ पे दिया जाएगा, so that some firing angle is selected to have an appropriate AC voltage over here, and यहाँ पे frequency, so that appropriate frequency AC voltage is produced over here, right? So ये है हमारा open loop V/F control method. Open loop V/F मतलब required speed मोटर पे चलाने के लिए कितना फायरिंग एंगल यहाँ पे देना है और कितनी फ्रीक्वेंसी कमांड यहाँ पे देनी है, वो पहले से हमने स्टडी करके एक लुकअप टेबल बना के रखा है, और धीरे धीरे जिस स्पीड पे मोटर को चलाना है अकॉर्डिंगली वी गिव फायरिंग एंगल टू कंट्रोल रेक्टिफायर, एंड अकॉर्डिंगली वी गिव द रेफरेंस सिग्नल टू द स्क्वायर वेव इन्वर्टर. तो इसको हम बोलते हैं ओपन लूप V/F कंट्रोल मेथड. इसकी डिसएडवांटेज ये है कि इसमें हमें प्योर साइन वेव नहीं मिलता. We'll see the advantages and disadvantages over here. Inverter can control frequency only. Control rectifier required for voltage control. Magnitude of voltage नहीं कंट्रोल हो सकता इन्वर्टर से, इसके लिए हमें कुछ और चाहिए. AC waveform is square wave, so harmonics are there. दूसरी मेथड जो पॉपुलरली यूज होती है आजकल, ऑल द इन्वर्टर्स और ऑल द वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स आर ऑफ दिस टाइप. इट इज यूजिंग पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर इन्वर्टर. व्हाट यू कैन सी ओवर हियर दैट दिस इन्वर्टर इटसेल्फ इज अ पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर. इसको हम पीडब्ल्यूएम पल्सेस देते हैं, तो इसकी रेफरेंस फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कंट्रोल हो सकता है, एंड पीडब्ल्यूएम पल्सेस मतलब डिफरेंट पीडब्ल्यूएम टेक्निक्स है जिससे हम मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज भी कंट्रोल कर सकते हैं. You can see over here that in this uncontrolled rectifier is there, because now diode rectifiers are good magnitude of voltage control करने के लिए और frequency control करने के लिए, दोनों के लिए ये इन्वर्टर खुद उसमें capable है, तो हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, right? So again यहाँ पे सिर्फ speed reference देना है, accordingly it generates PWM pulses so that required voltage and required frequency supply is available outward. देख सकते हो उसमें pure square wave नहीं मिलती, but you have a PWM pulses like this. PWM pulses are designed in such a fashion के center में pulses are of larger width and यहाँ पे thin pulses है, तो approximately ये sine wave जैसा हमें feature देता है. So it is more near to sine wave. It is having lesser harmonics. This is a better method compared to the previous square wave inverters. So the features of PWM inverter: inverter can control both frequency and voltage, can work with uncontrolled rectifier or diode rectifiers which are very cheap compared to uncontrolled rectifier. PWM pulses need to be produced, मतलब ये complicated है control करने के लिए, and this method is popularly used. Harmonics are less, और आप इसमें आप will see in the PWM part के उसका PWM pulses, number of pulses in a half cycle इस तरह से select कर सकते हो that a particular order of harmonics can be eliminated. That is not the scope of this subject, but this is something which is worth noting for this subject, right? So I think that's all for today. जो आज का हमारा discussion का topic था वो था how to achieve frequency control. So once again, if we recall the discussion over here, तो frequency control हम achieve करने के लिए we need an inverter. What is an inverter? An inverter is a device जो DC से AC में convert करता है. It is also worth noting that inverter uses self-commutating devices like MOSFETs, IGBTs and BJTs, right? छोटे devices के लिए BJT, medium के लिए MOSFETs and power अच्छे बड़े power rating के लिए IGBTs use करते हैं. आजकल IGBTs मतलब megawatt rating तक भी hundreds of kilowatt rating तक की IGBTs available है. So that is यहाँ पे इन्वर्टर में आप जानते हो you cannot use an SCR because ये DC से AC कन्वर्ट करता है, कहीं भी नेचुरल जीरो नहीं होता है, उसको टर्न ऑफ करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. V/F कंट्रोल अचीव करने के लिए वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई जनरेट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर या करंट सोर्स इन्वर्टर. वोल्टेज सोर्स भी दो तरीके से है हमारे पास, जैसे हमने देखा स्टेप इन्वर्टर एंड
पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर। स्टेप इन्वर्टर से पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर अच्छा है, उसमें मैग्नीट्यूड एंड वोल्टेज फ्रीक्वेंसी दोनों चेंज हो सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी दोनों इन्वर्टर को चेंज कर सकता है, सो अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर से काम चल जाएगा। एंड उसमें हार्मोनिक्स कम होते हैं, आउटपुट इज मोर नियर टू साइन वेव। प्योर साइन वेव तो इसमें भी नहीं मिलता, बट देयर इज approximation and that you can use it, right? So here we are going to stop our discussion for today. Tomorrow we are going to discuss about the closed loop control. ये open loop V/F control है, closed loop V/F control method, and most after that we will see how we can use current source inverter for the controlling of variable frequency drive. This is the most popular and most common topic so far as the scalar control of drive is concerned. So please इसको आप अच्छे से लर्न करिएगा। इसका वीडियो बना के I'll share it with you, so आप फिर से इसको रिपीट मोड में आराम से देख सकते हो, right? So that's all for today. Do you have any questions? No sir. No, sir. Thank you for joining. कितना बच्चा से? 6 बच्चा से। Okay, thank you. See you tomorrow. Bye.